virtual worship. આજે મારે તમને લઈ જવાના છે રાજસ્થાન અજમેર. આપણે મળવા જવાના છીએ ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીને. ખ્વાજાજીને ત્યાં દુનિયાભરના દરેક ધર્મના લોકો બહુ જ પ્રેમથી જાય છે, બહુ જ શ્રદ્ધાથી જાય છે ચાદર ચડાવવા માટે. અને તમે આઈ ડોન્ટ નો તમે પહેલાં જ ગયા છો કે નહીં, પણ બરાબર દરગાહની વચ્ચે એક મોટું વડનું ઝાડ છે કે જ્યાં લાખો પક્ષીઓ છે. અને ચિશ્તી ફેમિલીની મદદથી હું સૌથી પહેલી વાર જ્યારે ત્યાં સવારના પહોરમાં ચાદર ઓઢાવવા માટે ગઈ હતી, વેરી અર્લી 3:30 ઓર 3:45 ઇન ધ મોર્નિંગ, ત્યારે આ લાખો બર્ડ્સનો અવાજ એવો સંભળાતો હતો કે જાણે જુદું મેડિટેશન થતું હોય. આજે એ જ દરગાહની સાથે આપણે કનેક્ટ કરવાના છીએ. ઓફિશિયલ દરગાહ હજી સુધી શરૂ નથી થઈ, બટ વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ સ્નીક પીક ટુ ધીસ દરગાહ. અને એના માટે સૈયદજી આપણી સાથે હોવાના છે કે જે આપણને આજે અજમેરની ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીની દરગાહ જે છે એ ફેરવવાના છે. આ દરગાહ વિશે આખી દુનિયામાં અલગ અલગ પ્રકારની માન્યતાઓ છે. ગ્રેટ મ્યુઝિક અને સૂફી ફેસ્ટિવલ્સ ત્યાં થાય છે. રોજ સાંજે કવાલીનો પરફોર્મન્સ ત્યાં થાય છે. ત્યાં મોટી મોટી દેગ છે કે જેની અંદર ખૂબ મોટી મોટી પ્રજાના નંબર માટે રસોઈ બને છે. બહુ જ ગજબ છે આ જગ્યા. આઈ કેન ઓલ્સો ટેલ યુ કે આપણા ખૂબ બધા ફિલ્મ સ્ટાર્સ જે છે એ દરગાહ ઉપર ચાદર ચડાવવા જાય છે. અને ઘણી બધી વાર કયા કપડાં પહેરીને ગયા છે અને કેવી રીતે ગયા છે એની બિગ કોન્ટ્રોવર્સીસ પણ થાય છે કે જે આપણે છાપાની અંદર, સોશિયલ મીડિયાની ઉપર અલગ અલગ જગ્યાએ જોઈ શકીએ છીએ. તમે કોઈક વાર કટરીના કૈફને મળો તો એમને પૂછજો કે એમનો અનુભવ કેવો રહ્યો છે આ કોન્ટ્રોવર્સી બાબતે. બટ આઈડિયલી એ આખા અજમેરની અંદર બહુ જ ગીચ વિસ્તારમાં સડનલી વચ્ચે દરગાહ છે. દિવસના સમયે તમે જાઓ તો કદાચ તમને ત્યાં પગ મૂકવાની જગ્યા ના મળે, પણ જો વહેલી સવારે જ્યારે ખરેખર દરગાહ ખુલી રહી હોય ત્યારે તમને જવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો દેન યુ આર ધ લકીએસ્ટ. આજે સૈયદજી આપણને આ બતાડવા માટે લઈ જવાના છે અને એમની સાથે આપણે કનેક્ટ કરવાના છીએ ઓન આર વર્ચ્યુઅલ વર્શિપ ટૂર. એકવાર એ લાઈવની અંદર મને દેખાય એટલે તરત જ આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ ધેમ, કે જેને કારણે આપણે અજમેર ફરી શકીએ. તમારામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય પણ અજમેરની દરગાહ જોવા ગઈ હોય, તમને જો એનો અનુભવ હોય તો ચોક્કસ મારી સાથે અહીંયા શેર કરજો. આપણે સૈયદજીને પણ એના વિશે કહીશું અને પૂછી પણ શકીશું. લેટ મી ઓલ્સો ટેલ યુ, આ વર્ચ્યુઅલ વર્શિપ જે છે એ કોઈ પણ એક ધર્મ માટે નથી, કોઈ પણ એક મંદિર કે કોઈ પણ એક સેક્ટ કે કોઈ પણ એક પ્રકારના લોકો માટે નથી, આપણા બધા જ માટે છે. વી ઓલ હેવ ટુ ગો એન્ડ પે રિસ્પેક્ટ ટુ એવરી રિલિજન, એવરી ફેથ. અને ગઈકાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી સોમનાથથી, એના પછી આપણે દ્વારકા ગયા, પછી આપણે અંબાજી ગયા, ગઈકાલે આપણે જીનાલયની અંદર ગયેલા અને આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીની દરગાહ જોવા માટે. અજમેર દરગાહ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ. અને દરેક ધર્મ એટલે દરેક ધર્મ, અને દરેક ધર્મના સંતો ત્યાં જઈ અને દુનિયાભરના ધર્મના સંતો ત્યાં જઈ અને પોતાના ધર્મ વિશે અને એમની માન્યતાઓ વિશે અને પછી જે કોમન થ્રેડ દરેક ધર્મમાં વચ્ચે નીકળતા હોય એના વિશેની વાતો. जी अब दिख रहा है जी जी दिख रहा है मुझे. ये अजमेर शरीफ दरबार से लाइव हैं सभी लोग जितने भी मौजूद हैं सब, ताकि ये हाजिरी कर सकें. और बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका वर्चुअल वर्शिप टूर का. जितने भी लोग अपने घरों में मौजूद हैं वो इस लॉकडाउन के वक्त में चाहे किसी भी धर्म के हों, क्योंकि अजमेर उनकी आस्था जो है वो एक प्लेस ऑफ हार्ट है. वी आर अ प्लेस ऑफ हार्ट. ऑल हार्ट्स आर वेलकम हियर. जी जी माशाल्लाह. ये देखिए अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं ये शाहजहानी मस्जिद कहलाती है. ये दरबार की सबसे बड़ी मस्जिद है. इसको जामा मस्जिद भी कहा जाता है.
ये मुगल एम्परर शाहजहां ने यहाँ पे बनवाई थी। आम जी दिनों में आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक क्राउड इतना रहता है कि जी आपको ऐसा खाली देखने का मंजर सालों में कभी दिखता है। हमारी लाइफ टाइम में तो ऐसा पहली बार हुआ है जी। ये सामने जो है ये है आई कैन जन्नती इमेजिन सर। दरवाजा, गेटवे ऑफ हेवन। ये जी अभी जैसे हाँ लास्ट आपने देखा होगा, अभी कुछ वीक्स पहले ईद थी जी, तो ये साल के अंदर सिर्फ 4 बार खोला जाता जी है, ईद के दिन और ईद के 6th डे जो ओह होता है उस ओके वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के स्पिरिचुअल गुरु जो थे जी पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स रहता है, जी तब खुलता है। जी और एक बकरा ईद ओह पे और एक ओके गरीब नवाज के उर्स जब रहते हैं तो उस वक्त पूरे 6 दिनों के लिए ये खोला जी जाता है। तो इसके अंदर हाजिरी देने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं कि यहाँ से हम लोग एक बार गुजर जाएं। तो इसकी मान्यता ये है कि जो इधर से गुजरता जी है वो जन्नत में जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा जन्नती दरवाजा जी। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप हम्म दुनिया भर के गुनाह करके आते हैं और आप गेट के अंदर से निकल गए तो जन्नत में जाएंगे। इसका मेन जो मोरल है इसके पीछे वो ये है कि जी जो गरीब नवाज ने रास्ता दिखाया सबसे मोहब्बत का, लव टुवर्ड्स ऑल मैलिस टुवर्ड्स नन, जी किसी से भेदभाव नहीं, सबको साथ में लेके चलना, सबको प्यार जी से रखना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको साथ में बैठ के खाना खिलाना। आज जी के वक्त में वो चीज़ सोसाइटी से क्या अपने डिमिनिश हो रही जी है। यहाँ का जो मैसेज है उसके ऊपर जो चलेंगे लोग तो बेशक बिल्कुल इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे जी जी ये देखिए ऊपर जी। क्या यहाँ पे वहां तो पे भी अभी रात को बारिश हुई थी? ये रमज़ान जब स्टार्ट हुए लास्ट मंथ, तब से यहाँ पे माशाल्लाह मौसम अच्छा है, खुशगवार है, रेन बारिश वगैरह जी होती है। रमज़ान स्टार्ट हुआ तब से ये है, अभी जी लास्ट वीक से भी अपने यहाँ पे रेन वगैरह है। हम्म मौसम आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा नूरानी मंजर है अभी भी, जबकि बिल्कुल राजस्थान में 40+ टेम्परेचर रहता है जी जी। अच्छा, ये जो सामने ट्रू देख रहे हैं आप, ये देखिए इधर, ये जो है ये गरीब नवाज की बीबी जी साहिबा का मज़ार है, गरीब नवाज की वाइफ का जी। तो जैसे अच्छा इनको जो है जी चमेली का फूल जो होता है, लिली जो होता है, वो बहुत पसंद था, तो इनको बीबी चमेली भी कहा जाता है जी ओके जी। और ये सामने जो देख रहे हैं ये बाबा अरे फरीद गंज वाह शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। चिल्ला मीन्स एक वो जगह जहाँ पे 40 दिन तक कोई ओके दरवेश इबादत करता है जी। तो इनका जो है जो ओह दरगाह है इनकी ओके वो पाकिस्तान में है, पाकपटन के अंदर। ये जो है गरीब नवाज के सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। ओके गरीब नवाज के जो स्पिरिचुअल जिन्होंने गरीब नवाज की जनरेशन को आगे बढ़ाया वो हैं ख्वाजा कुतुब, जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के पास में ही जी मेहरौली शरीफ में उनकी दरगाह है। उनके सक्सेसर ये हैं बाबा जी फरीद। जी जी बिल्कुल तो ये यहाँ पे जो जगह दिख रही है सिर्फ अच्छा साल में एक बार खुलती अच्छा है। ये मुहर्रम के हाँ, ये मुहर्रम के अंदर अपने ओके 4 से 7 तारीख के दरमियान खुलती है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये ओके नीचे स्टेयर्स से नीचे जाते हैं, फिर वहाँ पे बाकायदा केव है, बिल्कुल छोटी सी जगह है। वहाँ पे जाके लोग हाजिरी करते हैं, फिर दूसरे गेट से बाहर अच्छा निकलते हैं। ओके तो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, बहुत जो खुशनसीब हो उसको मौका अच्छा मिलता है। ये बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये वही हैं जिनका जिक्र हमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है, सिखिज्म की किताब है। तो गुरु नानक के साथ इनका बहुत वाह अच्छा ताल्लुक था, तो बहुत इनकी जो जी
शेर कह लें, श्लोक कह लें, इनकी तरफ से जो है वो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शुमार किए गए। तो जितने सिखिज्म के हमारे भाई हैं वो भी बहुत मानते हैं इनको, क्योंकि जो जी। गुरु के साथ रहे उनका मर्तबा क्या है। अच्छा। ये साथ ही ये भी बताना चाहेंगे, जब से लॉकडाउन एक तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो एक चीज सब लोगों ने देखी होगी कि ये जी। यूनिवर्सल पैंडेमिक है। ऐसा अनफोर्चून इशू था कि लोग पहली बार देख रहे थे इसको, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द जनरेशन। तो उस वक्त ये जी। यहाँ पे अजमेर शिव दरबार कभी ऐसा नहीं बिल्कुल। हुआ कि बंद हुआ। पर यहाँ पे जब ऐसी चीज वबा फैलने का, जो पैंडेमिक को बोलते हैं वबा उर्दू में, हम्म। तो वो फैलने का जब डर था, तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे अपने कोऑपरेट किया गया। जितने लोग थे उनको वापस भेजा गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे कम से कम लॉकडाउन के अंदर 4,500 जो पिलग्रिम थे वो यहाँ पे रह गए थे, स्टक हो गए थे, क्योंकि सब रेलवे, बसेस, फ्लाइट सब जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो यहाँ पे जितने भी जो पिलग्रिम रुके हुए थे ओके। उनका ऑलमोस्ट 40 डेज जो है जी। स्टार्टिंग के, उसके अंदर जितना भी उनका खाने वगैरह का इंतजाम है वो सब दरबार के जो खुद्दाम है, हम लोग जो हेरिडिटरी कस्टोडियन है जी। 800+ ईयर्स से, हाँ। उनकी तरफ से रहा। और जी। जितना भी उनका रहने का था अकोमोडेशन का, क्योंकि होटल्स वगैरह तो बंद हो गए मोस्टली, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो तो आए अपने 5-10 दिन के हिसाब से थे। अब वो इतने महीने के लिए यहाँ पे रुक गए तो उनका क्या ही होगा। तो उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे अकोमोडेट किया गया। जी। और उसके साथ ही जब यहाँ पे रमजान अरे शरीफ वाह। स्टार्ट हुए, तो रोजे का तो आपको पता है क्या रहता है, सुबह से शाम इंसान भूखा रहता है। तो उसके लिए 2 वक्त का जो सहरी और इफ्तार का वक्त होता है वही इम्पोर्टेंट है। जी। जी। तो वो भी प्रोवाइड किया गया बाकायदा यहाँ पे राशन किट्स जी। के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब के करम से जब उनको वापस भेजने का सरकार ने Very अलाउ nice. किया, तो यहाँ से बसेस, ट्रेन्स और जितने भी दीगर प्राइवेट गाड़ियों से जो भी इंतज़ाम हो सकता था, उसमें भी दरबार के लोगों की तरफ से बिल्कुल आगे बढ़ के इसके अंदर जी। ताउन किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया। तो माशाल्लाह इतने लॉकडाउन का जो इतना जी। मतलब अनफोर्सीन इशू था, उसके अंदर भी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई गरीब नवाज के करम से। और माशाल्लाह अभी हम लोगों जी। से जो कांटेक्ट करते हैं लोग, तो उनमें कितने ही दिन के डेली अपने मैसेजेस, कॉल्स, हर लोग बेताब बैठे हैं कि जल्दी दरबार ख्वाजा खुले, हम लोग भी हाजिरी के लिए आ सकें। तो इंशाल्लाह ये हम लोगों की भी आपके साथ मिलकर कोशिश है कि वर्चुअल टूर के जरिए जो लोग आने के तलबगार हैं उनकी अपने घर बैठे हाजिरी भी हो जाए। जी। ऐसा कभी भी सैयद जी पहले हुआ है कि हमने कभी वर्चुअल टूर कराया हो जी। मैं ख्वाजा जो जी के हूँ अपने दरबार इस का? पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। मेरा सैयद सानी चिश्ती नाम से फेसबुक प्रोफाइल है, बाकी जी। फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। तो वहाँ पे माशाल्लाह जब जब मौका मिलता है तो उसमें लाइव जाते हैं, तो जो लोग अपने घरों पे हैं वो इसके अंदर मुखातिब हो सकें और हाजिरी का शर्फ अदा जी। कर सकें। हाँ, इंशाल्लाह वेरी वेल, वेरी वेल। ज़रूर बाकी लोगों को भी शर्फ अता होगा। और अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे जी। हैं? हाँ जी सैयद जी, अब हम किस तरफ ये आगे देखिए बढ़ रहे हैं? सामने ये जो है ये बड़ी देग है, बिग कॉल्ड्रॉन, और उसी के सामने छोटी देग है। ये बड़ी देग जो है ये मुगल एम्परर अकबर जो था उन्होंने पेश करी। उनका क्या बेटे की मन्नत थी ओके। अकबर की, उनको औलाद नहीं थी। तो जब उनकी औलाद की मन्नत पूरी हुई तो जी। उन्होंने उस वक्त जो यूनाइटेड इंडिया था, हिंद जो
पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास दीगर जितना भी हिस्सा था उन सबको। तो हाँ, जी तो उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से ये पेश किया दरबार के अंदर, आगरा से यहाँ पैदल आके। ये जो सामने जी हाँ, वो स्टेयरकेस बड़ी दिख देग रहे है। हैं उसके तो इसके अंदर अंदर जो है भी वो एक बड़ी देग है। जी बिल्कुल, क्या हम थोड़ा सा करीब जा सकते हैं सैयद जी उसको देखने के लिए? जी, ये देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, दिस इज बड़ी देग ये जहाँ पे इसके अंदर एक बहुत वक्त बड़े में तादाद थाउजेंड्स में ऑफ खाना मिल प्रोग्राम। सकता है। और सैयद जी कौन से मौके पर जी जी कौन से मौके पर जी, इसके इसमें अंदर डेली बनता है जो खाना जो है वो माशाल्लाह। बनता जी है? हाँ, उधर ये छोटी बड़ी देग है। देग है। ये इसके अंदर ये रहता है कि जी गरीब नवाज के दरबार में हर धर्म के लोग आते हैं। हाँ तो यहाँ से कोई भूखा ना जाए, तो दरबार के अंदर मीठे चावल का लंगर बनता है जी इसमें, ताकि जो भी आता है वो हर कोई चख सके। तो वो गरीब नवाज के दरबार का एक जो जी रस्म है सभी को साथ में लेके चलने, वो ये लंगर भी शो जी करता है। हाँ ये सेम यहाँ पे सामने लंगर खाना है जो जी अंदर ही गेट जा रहा है, ये भी गरीब नवाज की तरफ से चालू किया गया लंगर है। 800 साल से ज्यादा हो गया जी जब उन्होंने लंगर चालू किया था। किस चीज का? दलिये का। हम्म, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लॉकडाउन के और ये अंदर भी 800 ये साल से माशाल्लाह रोज चल रोज रहा है। चलता रहा। लोग अंदर नहीं आ सके तो इसको बाहर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जी, ये अरे वाह, लंगर अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के करम से तब से आज तक जारी है, इंशाल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये हौज है वजू जी करने की जगह। ये जब ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, तब हाँ इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने अपनी तरफ से ये बनवाने के लिए नजर पेश करी थी, तो उनकी तरफ से बनवाया गया है ये। जी तो ये शो करता है यहाँ पे चाहे किसी भी रिलीजन के हों, अच्छा किसी भी नेशनलिटी के हों, अच्छा सब लोग वेलकम हैं और सबकी आस्था जुड़ी हुई है। जी इसके साथ एक और अपने मैं ऐड करना चाहूँगा, गरीब नवाज के रिलेटेड एक स्टोरी है कि गरीब नवाज रोजे से थे, जैसे फास्टिंग कर रहे थे, तो उनका जो फास्टिंग का वक्त था उस वक्त हाँ उन एक हिंदू लेडी जो है वो उनके लिए बड़े ही दिल से कुछ खाना लेके आ रही थी, रास्ते में ही थी, उनको पता चल गया। तो जब वो वहां पहुंची लेडी, जी तो उन्होंने उनको जी अपने हाथ से खिलाने की मंशा जाहिर करी। तो गरीब नवाज ने बेझिझक उनसे वो खाना जी खा लिया, और जब वो खाना खा के वो लेडी वापस खिला के वो वापस गई, हाँ तो जो गरीब नवाज के दरबार में लोग मौजूद थे उन्होंने उनसे पूछा कि हजरत जी ये आपका तो रोजा था, तो आपने ये खाना कैसे खा लिया, जी क्या मसला है ये? हाँ तो गरीब नवाज ने अर्ज किया, देखिए कुरान जी पाक के अंदर रोजा तोड़ने की बदले में क्या करना है वो चीज तो बताई गई है, पर किसी का दिल तोड़ते हैं तो उसके लिए क्या सजा है वो बताई नहीं गई। जी तो किसी का दिल तोड़ना वो बहुत बड़ा गुनाह है। आज के ओ वक्त माय में अगर गॉड, इंसान इस चीज को ही समझ ले तो वो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब हो। जी, बाकी सच अ जो ब्यूटीफुल स्टोरी। चिश्तिया सिलसिला है, गरीब नवाज के दरबार से जो वाबस्ता लोग हैं उनको पता है कि इसमें लंगर को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि गरीब नवाज ने जो है वो जी जो अर्ज किया था लोगों से कि अगर किसी को भी दोजख की, जहन्नम की, नर्क की आग जी से बचना हो तो वो ये कुछ 3-4 काम है वो करें। वो है फीड द जी हंग्री, जो अपने भूखे हैं उनको खाना खिलाए। जी प्रोवाइड वाटर टू द थर्स्टी, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाए। जी और जो जी जरूरतमंद हैं पानी पिलाएं। उनकी मदद करें। ये काम अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो आपको दोजख की, हेल फायर जो होता है, उससे निजात मिलेगी। तो उसी घड़ी के अंदर गरीब नवाज के दरबार के अंदर लंगर माशाल्लाह ब्यूटीफुल
चलता ही रहता है। और दूसरे दीगर जितने भी अपने चिश्तिया सिलसिले के दरबार हैं वहाँ भी सेम रिचुअल्स अपनाई जाती हैं। इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन के वक्त में जितने भी लोग थे उनका ये जुदा कहीं दरबार बंद तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जो रिचुअल्स होती हैं वो तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन है तब से दरबार खुला है। जो हम लोग अंदर खुदाम ख्वाजा हजरात हैं वो लोग मौजूद हैं और दरबार की जितनी भी रस्मात होती है, जितनी भी खिदमत होती है वो मुसलसल जारी है। और सभी के लिए, आलम इंसानियत के लिए दुआ कीजिए। ये सैयद जी, मैंने हर एक रिलीजियस प्लेसेस में यही बात सुनी, द्वारका में, सोमनाथ में, अंबाजी में, कि जो वहाँ का स्टाफ है जो पहले भी मंदिर को मेंटेन करता था, या देरासर में कल जब हम गए तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि अंदर का जो स्टाफ है उन्होंने वैसे ही ट्रेडिशंस मेंटेन किए। सिर्फ वो लोगों के लिए बंद हुआ, पर अंदर के जो लोग हैं जो उनका ध्यान रखते हैं उन्होंने वैसे ही ध्यान रखा। और आप भी यही बता रहे हैं कि ख्वाजा जी के लिए भी ऐसा ही किया गया। बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह गरीब नवाज के दरबार के अंदर तो ये 800 साल से ज्यादा हो गया, सेम हम लोग जनरेशन से भी चले आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वर्ल्ड के अंदर कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे 8 सेंचुरी से ज्यादा मुसलसल एक जनरेशन दरबार से जुड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का करम है ये जो सामने देख रहा है, ये बिल्कुल आप देखें सामने की अकबरी मस्जिद है। ये भी मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। ये भी देखिए आर्किटेक्चर सब उस मुगल एम्परर टाइम का है जी। बाकी अभी मैं आगे और आपको दिखाता लंगर वगैरह तकसीम जो होता है वहाँ पे जाके, पर अभी उधर के लॉकडाउन के टाइम है तो उधर काम चल रहा है ताकि जब ज़ायरीन आए तो उनको परेशानी ना हो। जी बाकी जो अभी दरबार ओपन होने के रिलेटेड बात है और जो उसके लिए प्रिपरेशन की गई है वो मैं आपको थोड़ा 5 मिनट के अंदर उससे मुखातिब करता हूँ। अभी क्या यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा बाहर निकल के आप वीडियो जारी रखें, इंशाल्लाह मैं 5 मिनट के अंदर आपको ज्वाइन करता हूँ। जी ઠીક કે જેથી તમે ક્લિયરલી આ જગ્યા જોઈ શકો। પણ આ કોમેન્ટ્સ એટલા માટે પણ બંધ કરવામાં આવી છે કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે જેટલા પણ ધર્મ વિશેની વાતો કરી રહ્યા છીએ એમાં લેટ મી ટેલ યુ વેરી ક્લિયરલી કે દરેક ધર્મને એક સરખું રિસ્પેક્ટ મળે એવી પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ આપણે ઊભું કરી રહ્યા છીએ। ભારત જે છે એ છેલ્લા 5000 વર્ષથી આટલી બધી ડાયવર્સિટીને એક સાથે લઈને ઊભેલો દેશ છે। તમે જુઓ તો અહીંથી લઈને મેડિટેરેનિયન સી સુધી એવો એક પણ દેશ નથી કે જેની પાસે આટલું બધું વૈવિધ્ય હોય, ભાષાની રીતે, કલ્ચરની રીતે, ધર્મની રીતે, વિચારોની રીતે, ખાનપાનની રીતે। અને આ બધા જ વૈવિધ્યને એક સાથે રાખીને સાંકળીને જે દેશ આટલા વર્ષોથી ઊભો છે, 5000 વર્ષ કોને કીધા, આપણી સંસ્કૃતિનો કેટલો લાંબો સમય છે। એમાં જેટલા લોકો બહારથી આવ્યા, જેટલા લોકો અહીંયા વસ્યા, એમાં જેટલા પણ ઉતાર ચઢાવ આવ્યા, એ બધાની અંદર we found our way to remain the India that we are। આખી દુનિયામાં ભલે એવી ચુસ્તતા હોય કે કોઈ એક જ ધર્મ કે એક જ ભાષા કે એક જ પ્રકાર કે એક જ ખાનપાનના લોકો રહેતા હોય, આપણી પાસે એક બહુ જ બ્યુટીફુલ સ્ટનિંગ ડાયવર્સિટી છે। અને આ ડાયવર્સિટી એ એટલી ગજબ છે, એ જ આપણી તાકાત છે। નાનપણમાં કદાચ તમને યાદ આવતું હશે, એક તિતલી અનેક તિતલિયા, એક ગિલહરી અનેક ગિલહરિયા, 5 આંગળી જ્યારે મુઠ્ઠી બને છે ત્યારે તાકાત કેટલી બધી વધી જાય છે। બસ આ વાત જે છે જેન્યુઅનલી યાદ રાખવા જેવી વાત છે। અને આપણા દેશની બહારના લોકો આપણને આપણાથી જેલસ થઈને કે આટલી બધી ડાયવર્સિટીને વૈવિધ્યવાળા લોકો કેવી રીતે એક સાથે આ ભારત નામના ઘરની અંદર રહે છે સુખેથી, એ લોકો બહારના આપણી સાથે લડવા માટેનો પ્રયત્ન કરે એ તો ઠીક, આપણી અંદરના, આપણી આસપાસના લોકો આપણને અંદરો અંદર લડાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તો લેટ મી ટેલ યુ કે એ સામાન્ય માણસો ક્યારેય નથી હોતા।
એ મારા તમારા જેવા લોકો નથી હોતા, કારણ કે આપણે તો બધા એકબીજાની સાથે જ ઉછર્યા છીએ, આપણે બધા એકબીજાની પ્રેઝન્સમાં જ ગ્રો થયા છીએ. હિન્દી સિનેમા જગતથી લઈને, સંગીતથી લઈને, શિલ્પથી લઈને, નોલેજથી લઈને, આપણે જેટલું પણ બધું કર્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ ઓફ ઇન્ડિયા, એમાં દરેકે દરેક ધર્મના લોકોનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, અને જે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. એટલે પોલિટિકલ પ્યાદા બનીને, એ લોકોની માનસિકતા અપનાવીને, જે અંગ્રેજો આજથી 200 વર્ષ પહેલા આપણા માટે ઊભું કરીને ગયેલા ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ, એ ટ્રીક હજી સુધી ક્યારેક આપણી સામે કોઈ વાપરવા માટે તૈયાર થાય અને આપણે એમાં મૂર્ખ બનીએ, એમાં સકમ થવાને બદલે દુનિયાના દરેક ધર્મને, નોટ જસ્ટ ઇન્ડિયાના, દુનિયાના દરેક ધર્મને, દુનિયાના દરેક કલ્ચરને, દરેક ભાષાને, દરેક રહેણી કરણીને આપણે રિસ્પેક્ટ આપીને એની સાથે કો એક્ઝિસ્ટ કરી શકીએ. હા, બીજા પણ છે અને આપણે પણ છીએ, ને આપણે એના બદલે નથી જીવવાનું. આપણે એનાથી સારા, આપણે એનાથી વધારે સાચા, આપણે એનાથી ઊંચા, આપણે એનાથી નીચા, આવી કોઈ પણ સમજણ ભૂલી જઈને એ યાદ કરજો કે કોરોના જે છે એને આપણને બધાને એવું રિયલાઇઝેશન આપ્યું છે કે એ કોઈ પણ એક જ પ્રકારના લોકોને અટેક નથી કરતો, એ તો દરેકે દરેકને અટેક કરે છે જ્યારે કરવો હોય ત્યારે, કારણ કે ઈશ્વરને માટે એના બધા બાળકો એક સરખા છે. આ ભેદ જે છે એ આપણી બુદ્ધિએ કરેલા છે. કલ્ચરલ ભેદ જે છે એ તો વખાણવા લાયક છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જક્કી વેડા જે છે એ તો કોઈ પણ ધર્મ ને માટે ડેન્જરસ હોઈ શકે. સો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમે આવા કોઈ પણ આજુબાજુની કોન્સ્પિરસી કે સ્કેન્ડલ્સની અંદર ફસાવ નહીં, અને બને એટલા વોર્મ રહો, બાહો ફેલાવીને દરેક ધર્મના, દરેક બેકગ્રાઉન્ડના, દરેક ટ્રેડિશનના, બધાની પોતપોતાની ચોઇસીસ હોય એવી પ્રકારના લોકોને તમે વેલકમ કરી શકો. અને ખાલી તમારા ઘરના નહીં પણ તમારા મનના દરવાજા સતત દરેક વ્યક્તિ માટે ખુલ્લા રહે એવી પ્રકારનો પ્રયત્ન કરો. આપણે ગરીબ નવાઝ જેને આજે જોઈ રહ્યા છીએ, એમનું પણ આ જ કહેવું હતું, અને એટલા માટે કોઈ પણ ધર્મના લોકો ત્યાં બહુ હેપીલી જતા હોય છે. somebody was asking me અહીંયા કે મારે પણ જવું છે, શું હું પણ જઈ શકું? કોઈ પણ જઈ શકે, કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ, કોઈ પણ ફિનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ વાળી વ્યક્તિ જે છે એ ત્યાં જઈ શકે. જો આપણને જ્યોર્જ ફ્લોઇડ નું મૃત્યુ અમેરિકામાં જે થયું એ રેસિઝમ લાગતું હોય, તો આપણે ભારતની અંદર એવી પ્રકારની જેટલી પણ ઘટનાઓ બને છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખીને એ સ્વીકારવું જોઈએ કે ત્યાં એક આખો દેશ ઊભો થઈ જાય છે કોઈક એક વ્યક્તિ સાથે કંઈક ખોટું થાય તો એ પ્રકારની માનવતા આપણે પણ અહીંયા રાખીએ, અને કોઈ પણ રીતે આપણને છૂટા પાડવા માટે દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત પ્રયત્નો કરે, પણ આપણે આપણા મનની અંદરથી દરેકે દરેક પ્રકારની નોવેલ્ટી, ઇનોવેશન, યુનિકનેસ ને એક્સેપ્ટ કરી શકીએ એવો પ્રયત્ન કરીએ. હવે આ વાત કરવા વાળી કોઈ પણ વ્યક્તિ એક પ્રકારના પોલિટિકલ પાર્ટીમાં માનતી હશે એટલે આવું બોલે છે, કે બીજી પ્રકારની પોલિટિકલ પાર્ટીમાં માનતી હશે, આવા બધામાં ક્યાંય પડવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. અને જેટલા પણ લોકો સોશિયલ મીડિયાની ઉપર આ બધું જોતા હોય એમના માટે બહુ જ ઈઝી છે એવું લખી નાખવું, તમને એક બોક્સમાં ભરી દેવું કે તમે એ નથી તો તમે બી જશો, તમે બી નથી તો તમે સી જશો. પણ તમને અને મને કદાચ ABCD ના આટલા જ લેટર્સ આવડે છે, A to Z. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે એ સિવાયના કોઈ પણ સાઉન્ડ દુનિયાની બીજી કોઈ ભાષામાં એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા. કદાચ ખાલી અંગ્રેજીમાં A to Z છે, ગુજરાતીમાં ળ પણ છે ને ણ પણ છે. બોલો, અંગ્રેજીમાં એ છે નથી ને? મલયાલીમાં લ છે. આયો ઇવન આઉટ આને બોલે એ છે, બરોબર? એ આપણી પાસે નથી, પણ આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે નથી સ્વીકારતા. That's exactly what I'm trying to talk about. આપણે જેટલી ઇઝીલી ઇટાલિયન ફૂડ ને, મેક્સિકન ફૂડ ને, સ્પેનિશ ફૂડ, આ બધું જ આપણી અંદર સ્વીકારેલું છે, બરાબર એવી જ રીતે બીજા ધર્મ ને બીજી બિલીફ્સ ને પણ આપણે સ્વીકારી શકીએ. બીજા જે કરે છે એ ખોટું છે એના કરતા મને સ્કૂલમાં બહુ સરસ એક શિક્ષકે શીખવાડેલું કે આપણે એક આંગળી જ્યારે કોઈની પણ ઉપર ચીંધીએ છીએ ત્યારે આ બાકીની 3 આંગળીઓ જે છે ને એ આપણા તરફ હોય છે. અને બહુ બધી વાર આપણે આ 3ને મિસ કરી દેતા હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણું બધું ફોકસ જે છે એ આની પર જ હોય છે. સો લોકોને પોઈન્ટ આઉટ કરવાને બદલે ટ્રાય એન્ડ પુશ યોરસેલ્ફ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કે તમે તમારી જાતમાંથી કેટલી વધુ મોકળાશ ઊભી કરી શકો એમ છો.
મારો કોઈ જ ઓપિનિયન લક્ષ્ય અત્યારે ઇન્ડિયન આર્મી ને એનું ફેમિલી ને એકતા કપૂર ને એ બધા પર નથી. હું તમને જે કહેવાની હું જે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છું લક્ષ્ય, એ દુનિયાની ઘણી મોટી લાર્જર વાત છે. અને આપણે આ પ્રકારની ગોસિપ્સ ને કોન્વર્સેશનમાં પડવાને બદલે કદાચ એક મોટું લેસન આ છેલ્લા 80-90 વર્ષનું જે 80-90 દિવસનું જે લોકડાઉન છે એની પાસેથી લેવાનું છે. લોકડાઉન જ્યારે થયું ને ત્યારે બધી ગોસિપ સાઇટ પર રહી ગઈ હતી. આખી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ને ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રી બેસી ગઈ હતી. જે હતું એ માત્ર આપણે જીવી શકીએ, સર્વાઈવ કરી શકીએ એની બીક હતી. એમાંય લોકોએ નહોતું મૂક્યું કે આને બ્લેમ કરીએ ને તેને બ્લેમ કરીએ કે આના કારણે થયું તેના કારણે થયું. દરેક ઘરની અંદર, એક ઘરની અંદર પણ જ્યારે 4 જણા લોકડાઉનમાં રહ્યા હતા ને 90 દિવસ, ત્યારે અંદર ઝઘડેલા. રાઈટ? મમ્મી પપ્પા સાથે ઝઘડો થયો હશે, ભાઈ બહેનની સાથે ઝઘડો થયો હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક લડાઈ થઈ જ હશે. તો એ વખતે આપણને એવું લાગતું હતું કે હવેથી આ વ્યક્તિને આપણે આપણાથી અળગો કરી નાખીશું. એ ઝઘડાને આપણે તરત રિઝોલ્વ કર્યો. કેમ કર્યું? કારણ કે આપણા ઘરની અંદરનો હતો. આખો ભારત દેશ જે છે ને એ પણ આપણું ઘર છે. હવે મારા અને તમારા બા ને દાદા ને એમના પોતાના ફેમિલીઝ ને એ વખતે ત્યારે અનબન હતી કે નહોતી, ને પછી કોને જબરદસ્તીથી લગ્ન કર્યા કે પ્રેમથી લગ્ન કર્યા, લવ મેરેજ હતા કે અરેન્જ મેરેજ હતા. આપણી ચોથી પેઢીના દાદા જે છે એ આપણે દાદી પર દાદાગીરી કરતા હતા કે નહોતા કરતા. Like there can be immense questions, but we don't stop loving them because of that. We love our legacy. અને આ લેગસી જે છે એ આપણી આખી દુનિયાની સૌથી રેર લેગસી છે. અને સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ જે છે એ ભારતે સૌથી વધારે પ્રૂવ કરેલું છે. અને એ પણ આટલી બધી ડાયવર્સિટીની સાથે. તો એ ડાયવર્સિટીને આપણે ખુશીથી સેલિબ્રેટ કરી શકીએ એટલા માટે આ કોન્વર્સેશનમાં હું કોઈ પણ પ્રકારની નેગેટિવિટી કોઈ જગ્યાએથી નહોતી ઈચ્છતી. એઝ સચ પણ આપણે જ્યારે પણ લાઈવ કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ જગ્યા બતાડીએ તો એને માટે આપણે નીચેની કોમેન્ટ્સ ઓફ કરતા હોઈએ છીએ. પણ એઝ એન્ડ વેન આઈ વુડ ફીલ કે ના આપણે પ્રેમ ફેલાવાને બદલે નફરત ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, હું કદાચ ફરીથી એવું કરી દઈશ. તો તમે શું લખો છો એના વિશે બહુ જ ધ્યાન રાખજો. એન્ડ સૈયદજી આપણી अभी સાથે जैसे अंदर सब સૈયદજી लोगों की બતા. हाजिरी हुई ये वर्चुअल टूर के जरिए, अभी જી वक्त भी ऐसा है कि ज़्यादा सोशल જી गैदरिंग नहीं हो सकती, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है. तो ये भी एक अच्छा जरिया है कि लोग જી अपने जो જી स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनकी जिनसे कनेक्ट हैं, वो उनको अपने घर बैठे भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं. बाकी ये कनेक्शन तो જી दिल का कनेक्शन होता है, हार्ट कनेक्शन है. वो जहाँ से भी आप જી पुकारेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपकी. जी, अभी जैसा मैंने बताया था आपको ટ્રુ अंदर अपने वर्चुअल टूर के दौरान भी कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सब लोगों ने मिलके अच्छे से सामना किया. क्योंकि अगर कोई ऐसा इश्यू होता है पूरी कंट्री में भी या वर्ल्ड में भी, कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक है या फ्लड्स हैं, कुछ भी है, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है. कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उसने, जैसे अभी ये स्टॉर्म आया था कोई वेस्ट बंगाल और જી उड़ीसा के अंदर हुआ, तो वो उस स्टेट के अंदर रहता है. तो बाकी लोग मिलके उस जगह की मदद करने की જી कोशिश करते हैं. अब ये जो वक्त है उसके अंदर ये है कि हर जगह ही ये प्रॉब्लम है, જી कोई ऐसी जगह छूटी नहीं है. अब जैसे इंडिया हमारा लेंगे तो वहाँ पे हर जगह इस બિલકુल प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं. कोई જી अनएम्प्लॉयड है, कोई अपने किसी को खाने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि सब જી जितनी भी लोगों की હમ एम्प्लॉयज जो थे उनकी सैलरीज बहुत जगह पर જી रुकी. જી ouch, we lost the connect. हेलो जी, तो मैं यही बोल रहा था हाँ कि उस जी टाइम जब बोलिए. लॉकडाउन का वक्त था तो उस हाँ टाइम हाँ तो हाँ लोगों की मदद की गई जितना भी हो सकता था, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे. अब जैसे ये अब अनलॉक फेज में है हम लोग, तो इस टाइम पे जी उस वक्त से ज्यादा एहतियात की जरूरत है. उस टाइम तो जी सब लोगों ने घर के अंदर रह के अपने आप को सेव कर लिया, अपने जो क्लोज वंस थे उनको बिल्कुल सेव कर लिया. अब जो वक्त है अब आप सब लोग बाहर लेंगे, जी तो अब बाहर कोई अपनी जी लाइवलीहुड के लिए निकलेगा, किसी का बिजनेस है, किसी का और कोई भी मसला हो सकता है, उसके लिए जी निकलेंगे लोग. तो अब तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है. वैसे ही यहाँ पे जो जी रिलीजियस प्लेसेस हैं
उनमें भी इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जी thousands and lakhs of people visit here. जी तो उसी के मद्देनजर यहाँ पे अजमेर शरीफ से भी जी जो 8 जून को खुलने का था रिलीजियस, जी जी, ऑडियो जो आपका 8 जून को क्लियर आ खुलने रहा है वाला सर? था। जी, तो मैं ये बोल रहा था 8 जून से सेंटर के जी तरफ से तो परमिशन हो गई थी, पर यहाँ पे राजस्थान के अंदर सब लोगों ने अपनी आपसी सहमति से ये जी डिसाइड किया कि थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं, ताकि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो इसके लिए तैयारी कर सकें कि जो इतने लोग आएंगे उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो अजमेर शरीफ के अंदर भी ऐसा अपने जो गाइडलाइंस बन रही हैं उसके जी अंदर ये सब चीज़ इंक्लूड की गई है कि मास्क वगैरह लोग लगा के रखें और जब एंटर करते हैं तो सैनिटाइज हो, ओके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो, और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें लोग जो यहाँ पे विजिट करते हैं। जी तो अभी इंशाल्लाह देखिए ये जून के लास्ट वीक के अंदर अभी जी हो रहा है प्लान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलके सारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो हो जाती है, तो जून के लास्ट वीक के अंदर ओपन होगा। तो उसके अंदर यही बोलेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे आने के लिए जो हैं ओके डिवोटीज हैं, श्रद्धालु जो हैं यहाँ आने के लिए उत्सुक हैं, तो वो पहले से अपने प्लान्स वगैरह नहीं बनाएं, वो पहले राब्ता करें यहाँ पे दरबार के अंदर के कब से खुलने वाला है, क्या क्या जी प्रोसीजर है, उसको मद्देनजर रख के फिर उसके बाद उसका प्लान बनाएं, ताकि हाँ उनको भी तकलीफ ना हो हाँ और यहाँ पे भी ऐसी कोई तकलीफ जाहिर ना हो। जी जी कोई वेबसाइट है कि जी, जिसके अगर ऊपर ऐसे से कोई लोग ये लोग चेक अपने कर पाएंगे विजिट सही करने के ताल्लुक से कुछ अपने क्वेरीज हो, तो वो इस पे मेरी फेसबुक आईडी है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद सानी चिश्ती नाम से, और एल्स दे कैन कांटेक्ट मी ऑन माय मोबाइल नंबर, इट इज डबल जी नाइन 831 85859। जी, आप इसमें तो क्या गजब है, प्रॉब्लम की आपने बात है, मोबाइल नंबर हमारा जो इंस्टाग्राम पे मतलब लाइव भी दे दिया है। दरबार का गरीब नवाज का जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कितने ही मुल्कों के अंदर जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के दरबार से हम लोग जुड़े हैं, तो उनका वर्ल्ड जी ओवर कहीं से भी कोई अपने इंडिया का तो मतलब हर रीजन से, कश्मीर से कन्याकुमारी हो, ईस्ट से वेस्ट कहीं पर भी जो है वो लोग गरीब नवाज से जो अपने ताल्लुक रखते हैं, तो उन लोगों का ताल्लुक हम लोगों से ही है, क्योंकि 800 सालों से जो जनरेशन बाय जी जनरेशन आ रही है कड़ी जुड़ती हुई, वैसे ही जो डिवोटीज हैं वो भी बाय जनरेशन अपने कनेक्शन रखते हैं यहाँ पे। किसी के ग्रैंडफादर आते थे, जी किसी के और अपने 3-4 जनरेशन जो भी उनके गुजरे हैं लोग वो आते थे, तो वो कनेक्शन ऐसे जुड़ता रहता है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है हम लोगों का। तो जी ये नंबर तो क्या हमारा इंडिया नहीं, फॉरेन के अंदर भी जहाँ पे भी लोग दूसरे हैं जी उन लोगों के पास भी रहता है। मेरा अपने जो साइट्स हैं उसके ऊपर भी मेंशन है, अच्छा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ओके 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 क्या हमारा टूर जी जो हाँ, है उसमें वहाँ पे आप हमें दरबार के जितना अंदर जैसे दिखा मैंने सकते थे बताया वो एक आप और सब आप दिखा चुके हैं। देग का और मैंने लंगर का आपको दिखाया था, और जहाँ पे खाने का लंगर होता है लोगों का, तो उधर की तरफ भी जी मैं दिखाता, जी पर अभी उधर की तरफ क्या काम चल रहा है। जी जैसा मैंने जी बताया लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर कोई पब्लिक है राइट नहीं, तो राइट जितना जल्दी काम हो सकता है वो होगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको जी फैसिलिटीज और अच्छी मिल जी सके। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सैयद जी जी, हमको पूरा पूरा दरबार दिखाने के लिए, बिल्कुल। और हम आशा रखते हैं कि जल्दी ही दरबार खुल जाए। 25 जून अभी जी तो नहीं, बोली जा रही है 25 डेट जून जो की है जब वो तो दरबार यहाँ से खुलने जो की सब लोगों ने पॉसिबिलिटीज है, मशवरा राइट? करके जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो सब आगे स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी, फिर वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जी लास्ट वीक ऑफ जून बता रहा है इंशाल्लाह, देखिए जब गरीब नवाज की अच्छा मर्जी होगी लोगों को बुलाने के लिए, अच्छा इंशाल्लाह तब जल्द अज जल्द दरबार खुले। बिल्कुल, अब बुलावे की बात है, वही अजमेर आते हैं, बुलावा हमें आना ख्वाजा चाहिए बुलाते ना। हैं। अब बाकी लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अब उनको भी गरीब नवाज को मंजूर था आई उन नो लोगों की भी हाजिरी दरबार के अंदर हो जाए, तो वो इस तरीके से। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया बिल्कुल। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें ये कोविड 19 की पैंडेमिक में,
आप और आपकी फैमिली सब लोग ठीक रहें। जैसे कि आपने बताया पिछले 800 सालों से आपकी जनरेशन जो है वो जी, गरीब इसके अंदर नवाज मैं का एक ख्याल चीज ऐड रख रहे करना हैं। चाहूंगा दरबार में आप मौजूद हैं और कि जो दिस इज आपने रेयरेस्ट बोला ऑफ द कि रेयर 800 इन द सालों वर्ल्ड। से हम जी। लोग गरीब नवाज का ख्याल रख रहे हैं, तो हमारी कोई हस्ती नहीं है। इस चीज में ये कहना चाहूंगा, 800 सालों से गरीब नवाज हमारा और बाकी वो लाखों लोगों आपका का, ख्याल करोड़ों रख लोगों रहे का हैं। ख्याल रख रहे हैं। जी, नो, I agree. I agree. I take my words ठीक back. Totally. ठीक। You're right. Thank you so much, सैयद सबको जी, हमसे सलाम बात दुआ। करने के लिए बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। So this was our trip to the ગરીબ નવાઝ. બહુ જ લોકો એવું માનતા હોય છે કે તમને જ્યારે કોલ આવશે ડેસ્ટિનીનો ત્યારે તમે જઈને વિઝિટ કરી શકશો. આજે સવારના તમારો કોલ હશે અને એટલા માટે થઈને આટલી વહેલી સવારે આપણે લાઈવ કર્યું અને તો પણ તમે જોઈ શક્યા અને ગરીબ નવાઝને વિઝિટ કરી શક્યા. આની સાથે વર્ચ્યુઅલ ટૂર આપણી ચાલુ જ રહેવાની છે. તમે કોઈ પણ ધર્મની વ્યક્તિ હો અને કોઈ પણ ધર્મસ્થાન સાથે જોડાયેલા હો અને તમે ઈચ્છતા હો કે એ ધર્મસ્થાનને આપણે વિઝિટ કરીએ, વર્ચ્યુઅલી બધાને જ એ ધર્મસ્થાન જોવાનો મોકો મળે, લાવો મળે, તો તમે ચોક્કસ મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો rjdevki@gmail.com પર DEVAKI. 93.5 રેડ એફએમ પર પણ આ બધી વાતો સાંભળવા મળતી જ હોય છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમારા સુધી ડિજિટલ માધ્યમથી પહોંચાડવાનું કારણ એકમાત્ર એ જ છે કે તમે તમારા ઘરના કમ્ફર્ટમાં તમારા કન્વીનિયન્ટ ટાઈમ ઉપર આ વર્ચ્યુઅલ વર્શિપ જે છે એ કરી શકો. ભલે અમે ગમે તે સમયે કરી હોય, પણ તમે કોઈ પણ સમયે જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે કરી શકો. રિપીટ મોડ પર પણ જોઈ શકો. Thank you so much for watching. I will see you very soon. Bye bye. Sani sani pani pa maga maga sa. Virtual, virtual, virtual.